بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں، روزانہ 6 گلاس پانی پئیں، پکے ہوئے خربوزے کھائیں، 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں، 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں، دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں، سونے سے پہلے 2 چمچ ارنڈی کا تیل استعمال کریں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں اور مکاریاں سمجھ نہیں آتی، پر ہم خاموشی سے انہیں اپنی نظروں سے گرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے نہیں دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اللہ ہے نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لیا کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت سب سے پہلے پرندوں کو دانہ ڈالنے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کے کھاؤ: کھیرا اور سلاد۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھانا دیکھو تو جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ سانس کی بیماری میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو، نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں: چنبیلی کا پھول سونگھو، بادام کھاؤ اور کھجور کھاؤ۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیں گی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی
उतनी ही फकीर के पास भी होगी। देर से आते हैं मुझे लोग समझ में, इस बात से अक्सर मुझे नुकसान हुआ है। नहार मुंह दूध के साथ अजवा खजूर खाओ, आपका चेहरा बहुत सालों तक जवान रहेगा। जीरा हाजमे की खराबी को दूर कर देता है। पेट में दर्द रहता है तो रात के वक्त कलवंजी खाओ। वज़न बढ़ रहा है तो सूखी रोटी खाएं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लिया जाए। मिलजुल कर काम करें। जब तक दो चिराग रोशन ना हो, एक चिराग के नीचे अंधेरा रहेगा। सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और दुखों में सहारा होते हैं। ख्वाब में औरत खुद को हामला देख ले तो माल और दौलत मिलने की अलामत है। सोते वक्त नाप में बादाम के तेल के 3 कतरे डालो, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी। नहाने से 5 मिनट कबल नारियल के तेल की मालिश करो, जिल्द बेहतरीन हो जाएगी। कुछ लोग नज़र की रोशनी की तरह होते हैं, वो साथ हों तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, अगर इंसान के निकल आए तो फिर वो बर्बादी में अरूज पर पहुंचता है। नाक के अंदर बाल निकल आए तो जान लें कि दांतों को कीड़ा लगने वाला है। लाल रंग का पखाना आए तो बवासीर की अलामत है। बाएं पांव पर सूजन हो तो दिल कमज़ोर हो जाता है। सिरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाए की बदबू ख़त्म हो जाती है। हाथ और पाँव पर एलोवेरा लगाकर सो जाओ, रात को मच्छर नहीं काटते। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। हर दोस्त आपका खैर ख्वाह नहीं होता, अलबत्ता हर खैर ख्वाह आपका दोस्त होता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतेह नफ्स की फतेह होती है। सभी अच्छे हैं, बस अल्लाह बुरा वक्त ना लाए कि यही सब बुरे लगने लगेंगे। खाने के बाद एक खजूर का दाना मुंह में डालो, खाना हजम हो जाएगा। बड़े जानवर की हड्डियों का गोदा खाने से आपके अंदर कुव्वत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सफ़ेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल किया करें, अल्लाह सेहत अता करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी मौत से पहले मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। गुज़रे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। जैतून का तेल गरम करके नाफ में मसल देने से पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। दुनिया से शहद सबसे पहले उठा लिया जाएगा। जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो, ज़िंदगी भर फेफड़े ख़राब नहीं होंगे। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ नाटक करते हैं। या रब कभी गिरने ना देना, ना किसी की नज़रों में, ना किसी के कदमों में। जो औरत रोटी जल्दी जल्दी खाती है वो बहुत जल्दबाज होती है। पाँव के अंगूठे पर तिलों का तेल लगाने से
कद में इजाफा होता है। भिंडी का सालन हफ्ते में 2 बार खा लिया करो, पेशाब की रुकावट दूर हो जाएगी। दांतों से नाखून काटोगे तो नज़र कमज़ोर होगी। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। अल्लाह ताला की नाफरमानी किसी न किसी सूरत में तबीयत को परेशान रखती है। नमाज कायम करो। पेशाब की बीमारियों में गन्ने का रस पीना बहुत ज़्यादा मुफीद है। दुबले पतले लोग भी गन्ने का रस इस्तेमाल करें। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर हो जाती है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। नमाज पढ़ा करो, ये गुनाह बख्शवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मुक़द्दर तब बदलता है जब तुम अल्लाह पाक के फ़ैसलों पर शिकवा नहीं करते। अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, बेशक उसकी तरफ लौट कर जाना है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और अमल उसका फल है। इमली का अचार खाने से पाखाना खुलकर आता है। बेर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। रोटी चबाकर खाने से कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाता है। फलां ऐसा है, फलां वैसा है, ए इंसान ज़रा गौर तो कर, तू खुद कैसा है। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। जब अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाता है ना, फिर वो पूरी कायनात को तुम्हारा वसीला बना देता है। अल्लाह की ताकतों को कभी कम मत समझो। अल्लाह अगर महीनों को साल में बदल सकता है तो वो कबूलियत की लंबी मुसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। शुगर के मरीज़ खीरा ज़रूर खाओ। हरी मिर्च बदन में खून नहीं जमने देती और सांस की तकलीफ़ दूर करती है। कच्ची अदरक का चने के दाने के बराबर टुकड़ा रोज़ाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। नीम के पत्तों का रस बदन पर मसल देने से बदन पर दाने नहीं निकलेंगे। चने की दाल खाओ, बुखार उतर जाएगा। अगर आप अपने मनपसंद शख्स से 8 सेकंड गले मिलें तो उस वक्त आपका 80% डिप्रेशन कम हो जाता है। मोटी औरत की नाफ में लीमू का रस डाल दो, हफ्ते में वज़न कम हो जाएगा। फटकड़ी के ऊपर अंडे की सफ़ेदी लगाकर मुंह पर मसल दो, जुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। टिंडे खाओ, मैदे का दर्द कभी नहीं होगा। हामला औरत बच्चे का रंग सफ़ेद करना चाहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अनार का जूस पिया करे। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से डर लगता है, क्योंकि सांप अपने दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मुफाद के लिए। खामोश रहने के 15 फ़ायदे। जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात मुंह से निकाले या खामोश रहे। जल्द तजुर्बाकार होने के लिए एक असूल याद रखें, ज़ुबान बंद रखें, आँखें और कान हमेशा खुले रखें। खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जह मरकूज़ करने में मदद देती है। खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद देती है। खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद देती है। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। बोलने का हक छीना जा सकता है, खामोश रहने का नहीं। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत
دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہترین سن سکیں گے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ لیموں پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بار بار آنے کی شکایت ہو تو ان کو چائے پینا بند کر دینا چاہیے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔